नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले त्योहारों के मौसम में अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो। यहाँ आपको टॉप ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस द्वारा केराटिन ट्रीटमेंट, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, नेल एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, डायमंड रेडिएंट ग्लोब, बबल गम हैंड एंड फुट स्पा, ग्लास ग्लो फेशियल सहित और भी कई प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। इसके अलावा विशेष पूजा ऑफर के तहत हम ग्लो फेशियल, गोल्ड फेशियल, O3+ फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग, क्लीन अप, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा, क्लीन अप, हेयर कलर, जीके केराटिन ट्रीटमेंट की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। ये विशेष पूजा ऑफर 9 अक्टूबर तक वैलिड है, तो फिर देर क्यों, आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो, पद्मा टावर, सारदापल्ली, स्ट्रीट नंबर 6, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250808569 तथा 9832723757। आईएसपी समेत सेल की हड़ताल को सफल बनाने के लिए सोमवार को सुबह से ही आईएसपी के सभी गेटों पर 5 यूनियनों के नेता व कार्यकर्ता तैनात थे। उन्होंने हड़ताल के दिन ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों से वापस जाने का आह्वान किया। आईएसपी के टनल गेट के पास, फ्लाईओवर ब्रिज के पास बड़ी संख्या में हड़ताली कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान विभिन्न यूनियनों के कार्यकर्ता समर्थकों ने हड़ताल के समर्थन में नारे लगाए। वहीं गाड़ी के गेट पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, जहां हड़ताल समर्थक यूनियन कार्यकर्ताओं के अलावा आईएनटीटीयूसी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। यहां आईएनटीटीयूसी कार्यकर्ताओं ने हड़ताल के दिन ड्यूटी पर आने वाले श्रमिकों को संयंत्र में प्रवेश करने में मदद की, जिससे हड़ताल समर्थकों में आक्रोश फैल गया। इतना ही नहीं, वाहनों को गेट के अंदर प्रवेश कराने के दौरान ऑन ड्यूटी कर्मियों से हाथापाई भी हुई। यहाँ विभिन्न यूनियनों के नेताओं ने कर्मियों से हड़ताल को सफल बनाने का आग्रह किया। কিছু বলার নাই, এই যে আজকে স্ট্রাইক হয়েছে এটা ঠিক আছে, এরিয়ার দিচ্ছে না ম্যানেজমেন্ট তাহলে এগুলো সবই ঠিক আছে, কিন্তু মমতা ব্যানার্জির রাজত্বে কোনো এসব কর্মদিবস নষ্ট করতে আমরা দেব না। আমরা সাধারণ শ্রমিকরা, আমি তৃণমূলের সংগঠনে আছি, কোনো স্ট্রাইকটাই ঘটে দেবো না। আজকে মানুষের ঢল নেমে গেছে কাজে যোগদান করতে, কিছু মানুষ রাস্তার উপরে দাঁড়াচ্ছে, আমি এর প্রতিবাদ করছি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনো প্রতিবাদ হবে না, আপনি সাইডে যান, আপনার প্রোগ্রাম আপনি করুন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু মানুষকে আটকানো চলবে না। মানুষকে একদম রাস্তা থেকে সাইডে হোক, পুলিশ প্রশাসনকে বলছি সাইডে যান, কোনো অসুবিধা নেই, কর্মী কোনো কর্মীকে বাধা দিতে আমরা দেবো না, তাহলে প্রতিবাদ হবে। দেখুন, শ্রমিকরা কখনো শ্রমিকদের শত্রু হয় না, শ্রমিক কখনো শ্রমিকের শত্রু হয় না, কিন্তু শ্রমিককে যদি কেউ বিভ্রান্ত করে, যদি কর্তৃপক্ষ বিভ্রান্ত করে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়, আমাদের কাজ হচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়নের কাজ হচ্ছে, যারা বিভ্রান্ত হয়ে আছে তাদেরকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসা, এটা হচ্ছে আমাদের মূল কাজ। তাহলে যারা বিভ্রান্ত হয়ে আছে আমরা তাদের কাছে সঙ্গে আনার চেষ্টা করছি। আপনারা সবাই জানেন যে আমরা আগের বছর সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন, আমাদের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নে বসে আমরা সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ইনক্লুডিং তৃণমূল আইনটুসি, আমরা বিভিন্ন পুজো বোনাসের দাবিতে আমরা একযোগে আন্দোলন করেছি এবং সেই সময়ে হেলথ সেলে হাইয়েস্ট বোনাস আদায় করতে পেরেছি। অতএব যারা বিভ্রান্ত আছে আগামী দিনে তারা বিভ্রান্ত থাকবে না। আর আমাদের এটাই মূল কাজ ট্রেড ইউনিয়নের, তাদের প্রতি কোনো শত্রুতা নয়, তাদেরকে আমাদের মিত্র হিসাবে কাছে ডেকে নেওয়া, এটাই হচ্ছে আমাদের মূল কাজ। এটা হয় আন্দোলনের মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে, এবং রাস্তায় আন্দোলন করলে আমরা সবাইকে এক জায়গায় আনতে পারবো। দাবি হচ্ছে যে আমাদের জানেন যে আমাদের সেল কর্মীদের একটা ওয়েজ ডিভিশন 1/1/17 থেকে ডিউ ছিল, যেটা 21/10 হয়েছিল, এমইউ হয়েছিল। তারপরে তার এখনো পর্যন্ত ফাইনাল এগ্রিমেন্ট হয়নি। 39 মাসের এরিয়ার, পাক্স, গ্র্যাচুইটি সিলিং সমস্ত কিছু আমাদের ডিউ আছে। এইসব নিয়ে ডিমান্ড আছে আমাদের, এর জন্য স্ট্রাইক। এবং তার সাথে সাথে আমাদের কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কারদের জন্য, যেটা দুর্গাপুরের ওয়েজ, মানে দুর্গাপুর আমাদের এখান থেকে 45 কিলোমিটার, এবং সেম ডিআইসি, সেম ডিএলসি এবং সেম ডিস্ট্রিক্ট, আর এখানকারও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ একই,
কিন্তু আমাদের এইটারই মেন ডিমান্ড হচ্ছে যে কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কারদেরও সেন্ট্রাল ওয়েজেস দিতে হবে, এই নিয়ে আমাদের আজকে স্ট্রাইক। আমরা বারবার মানে আমাদের এখানে 5টা ফাংশনাল ইউনিয়ন আছে, বারবার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, বারবার আবেদন করা হচ্ছে, কিন্তু ম্যানেজমেন্টের যে কোনো ইয়েই দেখা যাচ্ছে না, মানসিকতাই নেই যে এই টাইপের সমস্যার সমাধান করবেন। তার জন্য আজকে আমরা এই জায়গাতে এসে পৌঁছি। সেই সমাধান হয়ে গেছে, কিন্তু এখন মেনলি দুর্গাপুরের সঙ্গে আমাদের যেটা মেন ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কারের ওয়েজেস। সঞ্জিত ব্যানার্জি, বিএমএস জেনারেল সেক্রেটারি। कुल्टी सेल फैक्ट्री में 5 ट्रेड यूनियनों ने एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। एआईटीयूसी, बीएमएस सहित 5 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों ने राज्य में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सभी इस्पात संयंत्रों के सामने सोमवार को एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। 39 महीने के बकाया वेतन के साथ ठेका श्रमिकों के लिए नया वेतन समझौता, श्रमिकों को उचित बोनस देने सहित मांगों के समर्थन में ये हड़ताल की गई। দাদা ঠিক কি মাঙ্গে নেয় আপনার? আমরা যেখানে সবাই উপস্থিত হয়েছি, আমাদের প্রায় 500-র উপরে ওয়ার্কার আছে। আমরা আজকে স্ট্রাইকে বসেছি কারণ আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যূনতম যে মজুরি আছে 1 অক্টোবর যেটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে সেটা আমাদের এখানে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না। আমাদেরকে পেমেন্ট দেওয়া হয় বেসিকটা রাজ্য সরকারের উপর। তো কেন্দ্রীয় সরকারের প্ল্যান হওয়ার পর আমরা রাজ্য সরকারের বেতন নিচ্ছি, এতটাই ডিফারেন্স আছে যে অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে। এতে আমাদের পরিবার চালানো খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই টাকায় আমাদের সংসার চালানো মুশকিল আছে। সেই জন্য আমরা 500 ওয়ার্কার একদিনের মজুরি আমরা আজকে স্যাক্রিফাইস করলাম শুধুমাত্র আমাদের দাবিগুলো পালন করার জন্য, যাতে আমরা সেই আমাদের দাবিগুলো পূরণ হয়। किन किन संगठनों का आपके साथ है? এখানে বিএমএস আছে, ইন্টাক আছে, CI2 আছে। अपना नाम? আমার নাম উৎপল ঘোষ। भैया आज किन मांगों को लेके यहाँ स्ट्राइक किया जा रहा है? आज हमारे स्लोगन के माध्यम से आपने सुना, पहला कि हम लोग का जॉब सिक्योरिटी, दूसरा लॉ इस्पात, ये भी सेल का वो भी सेल का। ASPDS में वेतन अलग है और हम लोग का वेतन अलग दिया जाता है। हम लोग का वेतन जो है बहुत कम परिमाण में वेतन है। इस वेतन में घर का गुजारा, बच्चों का परवरिश यानी कि संसार चलना मुश्किल है। इसी मांग पे पूरे लॉ इस्पात में, पूरे सेल के प्लांट में जहाँ स्ट्राइक चल रहा है उस स्ट्राइक को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। और कुल्टी में भी हम लोग आज स्ट्राइक किए हैं। हम लोग सभी वर्करों से आग्रह किया, अपील किया, सारे वर्कर स्वेच्छा से हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा होकर स्ट्राइक को सफल किए हैं। अभी तक कुल्टी के कारखाने में एक भी हमारा श्रमिक स्वेच्छा से अंदर नहीं गया है। हालांकि हम लोग कोई दबाव नहीं दिया, आपस में समझौता किए, बात किए, लेकिन कोई भी वर्कर अपने स्वेच्छा से अपनी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हुए सब अंदर में नहीं गया। हम लोग आज बाहर खड़े हैं और भी अगर हमारी बात को नहीं मांगा गया तो लड़ाई आंदोलन हम लोग का तेज होगा। कुल्टी के सारे मजदूर एक हैं। किन किन संगठनों का साथ मिला आपको? देखिए, ये हम लोग का जैक के तहत
जिसमें हमारे INTUC, CI2, BMS, HMS ये सारे यूनियन हमारे साथ दे रहे हैं, हमारे लड़ाई आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। हमारे लीडरान बाहर में खड़े हैं, वो लोग इस विषय में और बेहतर बताएंगे, वो लोग सब हमारे साथ हैं। करीबन कितने वर्कर आप लोगों के साथ जुड़े हैं? हमारे 545 वर्कर सभी के सभी हम लोग आज रास्ते में हैं और इस सड़क पर बैठे हुए हैं, इसको के बाहर, कुल्टी कारखाने के बाहर। आपका नाम? मैं विनोद सिंह, कुल्टी कारखाने का एक साधारण सा वर्कर। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। बंगाल विधानसभा में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज अंडाल एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से निकलते हुए उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर आए थे। उन्होंने बंगाल की राजनीतिक स्थिति को लेकर कुछ टिप्पणी की थी और प्रदेश में भाजपा सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया था। इस पर शुभेंदु अधिकारी ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह एक बहुत बड़े नेता हैं और वो एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, इसलिए अमित शाह की किसी बात पर वो टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। অমিত শাহজির মন্তব্যের পরে আমি মন্তব্য করব কেন? উনি নেতা, আমি কর্মী। 26-এ কি উনি নেতা, আমি কর্মী। উনি কালকে 26-এর নির্বাচন করেননি, উনি 1 কোটি সদস্য করতে বলেছেন, আমরা সেই কাজটা করছি। তাদের কি 26-এ রাজ্যপাট বদলাবে? উনি নেতা, আমি কর্মী। দাদা, আরজিকর ইস্যুতে 6টা বিধানসভার ভোট আছে, এই ইস্যুটা কি কাজে লাগবে? কারণ ডাক্তারদের আন্দোলন করা অনেকটা ধামাচাপা দেওয়া। পশ্চিমবাংলায় সুস্থ অবাধ গণতান্ত্রিক ভোট হলে কোনো হিন্দু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেবে না। আমি আবারও বলছি, কোনো হিন্দু, সনাতনী এবং জনজাতি তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেবে না। পশ্চিমবাংলায় গত উপনির্বাচনে আমরা দেখেছি 4টে কেন্দ্রে হিন্দুদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। শুধু বিজেপির হিন্দু নয়, তৃণমূল এবং সিপিএমের হিন্দুদেরও ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ভাই বলছে যে দলে কারোর সঙ্গে সদ্ভাব নেই, দলের কর্মীরা সম্মান পাচ্ছে না, এই ধরনের মন্তব্য। আমি ভাই ওদের দলের কথা বলতে যাব না, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, কোন কর্মচারীর সঙ্গে কার কি হয়েছে আমি কেন বলতে যাব? মালিক ঠিক করে। জুনিয়র ডাক্তার, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। জুনিয়র ডাক্তারদের সাথে আপনি আছেন? এই আন্দোলনটাকে ধামাচাপা দেওয়া। জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে আপনারা আছেন তো? প্রথম দিন থেকেই ছিলাম।
তাদের আন্দোলন আগামী দিনে কোন কিন্তু যেদিন মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে সন্ধি করেছে সেদিন থেকে নেই। নো কম্প্রোমাইজ উইথ মমতা ব্যানার্জি। ডাক্তার বোনকে মারার ক্ষেত্রে একমাত্র যদি কেউ দায়ী থাকেন তিনি মমতা ব্যানার্জি। নির্যাতিত आज काजी नजरुल विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग की तरफ से सर सैयद अहमद ख़ान को लेकर एक राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का मुद्दा आज की तारीख में सर सैयद अहमद ख़ान की प्रासंगिकता था। इस विषय पर जानकारों ने अपनी राय रखी और आज की तारीख में सर सैयद अहमद ख़ान की क्या प्रासंगिकता है या उनके आदर्शों की क्या प्रासंगिकता है, इस पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर यहाँ प्रोफेसर तौकीर आलम, डॉक्टर उमर गज़ाली, डॉक्टर सैफुल जमा अलीग, काजी नजरुल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर चंदन कोनार और काजी नजरुल विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फ़ारूक आज़म उपस्थित थे। इसके अलावा काजी नजरुल विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के तमाम विद्यार्थी भी यहाँ उपस्थित थे। अब मैं प्रोफेसर गज़ाली साहब के एक जुमले से अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ। गज़ाली साहब ने कहा कि हमारे सामने 70 साल की उम्र के बावजूद जवान नजर आते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ और आप सब लोग भी सुन लें, आपके भी कभी काम आएगा, कि प्रोफेसर कभी बूढ़ा नहीं होता। जो हमेशा जवान रहता उसकी वजह है, ऐसे नहीं जवान होता। हमारे सामने जब हम क्लासरूम में जाते, उस वक्त मेरी उम्र 30 साल हो या मेरी उम्र 65 साल, तो 65 साल रिटायरमेंट है, 65 साल हो, हमारे सामने कौन बैठा होता जिसकी उम्र 16 साल से 30 साल के बीच की होती, तो उन अपने शागिर्दों को देख करके वो हमेशा जवान रहता। चूँकि यहाँ पर तमाम तालिब इल्म हैं, उम्र के एतबार से सब के सब मुझसे कम हैं। हर चीज़ में कम है सर? नहीं, हर चीज़ नहीं, उम्र के एतबार से सभी हमसे कम हैं। लेकिन इंसान को कोशिश करना चाहिए कि हम जहाँ पर हैं इस फील्ड में अच्छे से अच्छा करें। अभी हम सर सैयद के फिक्री मानवियत, चूँकि जो आदमी सदारत करता, अब यहाँ पे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमको रात के 12 बजे तक इंटरव्यू लेकर मैंने उनको बाहर किया, वो भी लोग इसमें मौजूद हैं। तो जिसमें गज़ाली साहब भी मेरे साथ थे, हम दोनों इंटरव्यू लेते थे। रात के 12:35 को इंटरव्यू खत्म हुआ था। वो कोरोना का ज़माना था, तो ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे थे। इस वक्त वो कई हज़ार तक मौजूद हैं, नाम को देख के मैं अंदाज़ा हुआ। और अभी जैसा कि फारूक साहब बोल रहे थे, मैंने प्रपोजल रखा हो गया कि अल्लाह की मेहरबानी है, वरना तौकीर आलम क्या इसकी हैसियत है। लेकिन अभी हमने उसका दूसरा स्टेज जो अभी रुका हुआ है, अभी तक यहाँ पोस्ट सेंक्शन नहीं है। फारूक बाबू इतनी मेहनत करते, वो उनकी मेहरबानी है और ये उनका खास जज्बा है उर्दू के मुताबिक, वरना उनको पैसा तो मिलता नहीं। ये 10 कॉलेज से यहाँ तक आते जाते ये सब करते रहते, मुफ्त में करते। तो अभी रजिस्ट्रार का इत्तफाक से मेरे बगल में मौजूद थे, मुझे अंदाज़ा हो गया कि गायब होने वाले। तो हमने कहा कि इनको पकड़ लेता हूँ पहले आदत के मुताबिक, क्योंकि मैं टीचर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 17 साल तक, बिहार यूनिवर्सिटी से लेकर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी उर्दू टीचर एसोसिएशन। तो मैंने कहा कि एक वाइस चांसलर ने यह डिपार्टमेंट खोला, आप जवान रजिस्ट्रार हैं, आप पोस्ट सेंक्शन करवाइए, आपका भी नाम हम लोग देते रहे। तो मैंने कहा सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कोशिश में करा डालिए ताकि यहाँ परमानेंट टीचर आ जाए, या डिपार्टमेंट परमानेंट हो। अब देखिए कब सकते हो, अब अल्लाह उनसे कब करा देता, तो चूँकि हम जा चुके हैं बात क्या। अब आज हम सर सैयद की फिक्री मानवियत के और दौर हाजिर में है कि नहीं, इस पे आपके सामने मैं खड़ा हूँ। आमतौर पर जो आदमी सदारत करता है उसके हिस्से में बहुत कुछ कम बच जाता है। पहले के जितना मुकर्रर है वो मैक्सिमम बात कह जाते हैं, क्योंकि सब एक ही फील्ड के लोग होते हैं, सब उर्दू वाले होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकल जाती हैं। आमतौर पे सदारत जो आदमी करता उसके हिस्से में चीज़ें कम बचती हैं। फिर भी देखिए, आटू के सदारती खुतबा हमको देने के लिए कहा था फारूक बाबू,
क्योंकि फारूक बाबू को हमेशा फारूक बाबू ही कहते हैं, हमको प्रोफेसर डॉक्टर कम करते हैं, उनको स्टूडेंट लाइफ से देख रहे हैं और बड़े मेहनती है, इसलिए उनको पसंद बहुत पसंद करते फारूक बाबू। तो आप जुमे के दिन उन्होंने शाम में मुझसे कहा 7 बजे, इस तरह ऐसे है ही है ना, ठीक है इंशाल्लाह। इत्तेफाक से आज ही एक दिन मेरा फ्री था, कल उनको फिर जाना दूसरी जगह भाई वाले नहीं। अब चूँकि बिहार में जरा वो एक सिस्टम है कि प्रोफेसर लाइन से कम के लोगों को वहाँ नहीं बुलाते जाते, तो प्रोफेसर कम लोग बच गए हैं, हमारे जैसे 2, 4, 5 लोग रिटायर हो बचे हो, वही जाना पड़ता है हर जगह, और हमको जाने में अच्छा लगा। इससे अब मैं जो उर्दू का काम करता हूँ वो मैं पैसे के लिए नहीं करता, अब मैं उर्दू की खिदमत समझ के करता हूँ। पैसा मेरे लिए कोई मानी नहीं है, कितना कमाना था कमा चुके, 40 साल 15 दिन तक हम लेक्चर रीडर प्रोफेसर रहे, पैसा कितना कमा हो गया। और अल्लाह ने किसी भी गलत आदतों में मुलविस नहीं बनी, तो इसलिए पैसे की जरूरत नहीं, जो पैसा मिलता वो मेरे लिए काफी बात है। अब देखिए तो 2 तरफ से सदारती खुतबा, एक तो तकरीर होता है और एक खुतबा पढ़ा जाता है। तो तकरीर तो हमारी साहब लंबी चौड़ी कर गया, कोई हिस्सा मैंने छोड़ा नहीं, तो मैं खुतबा पढ़ देता हूँ और मैं लिख के लाया, लिख करके टाइप करा करके रातों रात, ये रात के 1:30 बजे हमें टाइपिस्ट ने दिया, निकाले, हम चलो लाओ कल उसको पढ़ डालो। तो अब आपको पढ़ते देखिए शायद, और आप सभी स्टूडेंट हैं, इसको गौर से सुनिएगा, आपको कुछ फ़ायदा जरूर होगा और इम्तहान के नुक्ते नज़र से भी फ़ायदा होगा। हम हमेशा जब कुछ लिखते हैं तो पढ़े लिखे लोगों के लिए तो मैं लिख नहीं सकता, स्कूली वो पढ़े लिखे होते, तो हमारे सामने स्टूडेंट मेरी निगाह में होता है, उनको सामने रख करके मैं लिखता हूँ ताकि उनके कुछ काम आ जाए। अभी देखिए आपके कुछ काम इंशाअल्लाह आएगा जरूर। और फारूक बाबू आपके लिए आपने गाजी रसूलनामा मैगजीन का ऐलान किया, बहुत अच्छी बात है, निकालिए और इस आपके मजमून शायद होगा उसमें इंशाअल्लाह जरूर, और उसमें आप उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़ पेपर्स, ताकि आगे चल के ये बच्चों का आपको फायदा हो जाएगा, आगे सेशन हो जाएगा, यूनिवर्सिटी के लिस्ट में लग जाएगा। तो ये जरूर करिएगा। एक आपने कहानी अदब का ऐलान किया, ठीक है, बना अच्छी बात है, रहना चाहिए, क्योंकि मैं खुद रह चुका हूँ बल में सुकन में जनरल सेक्रेटरी, तो हम भी छात्र हैं, लेकिन जो हफ्ते में एक आपने ऐलान किया ना, उससे बचिएगा, महीने में एक रखिएगा, जो हफ्ते में एक रखिएगा ना तो उसकी अहमियत कम हो जाएगी, वो इंटरेस्ट में लोगों का कम हो जाएगा, महीने में एक रखिएगा तो सरगर्मी बरकरार रहेगी। ये मेरा मशवरा है, वैसे आपकी जो मर्जी बेहतर से। तो अभी चूँकि यहाँ पे तमाम हजरात हैं, अब नाम पढ़न देंगे तो बहुत शिक्षा नाम का, तो अब मैं सीधे ये एक मजमून जो मुख्तसर का हमने लिख डाला है, जो खुतबा है और जिसका उन्वान है असर हाजिर में सर सैयद अहमद खान की फिक्री मानवियत। इसको देखिए, सर सैयद एक तहजीब का नाम है, एक फिक्र का नाम है, एक अजीम रुझान और नज़रिए से इबारत है। सर सैयद ने जिस वक्त अक्ल फहम और शऊर व विज्ञान की आंखें खोली थी, उस वक्त प्यारा वतन हिंदुस्तान बरतानवी इस्तेमाली ताकतों के चंगुल में चकरा हुआ था। कौम इक़्तिसादी, माशी, सियासी और तालीमी ज़बूहाली में पसमानदगी का शिकार थी। इनके लिए माश के तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे, आला तालीमी इदारे इनके लिए मफदूद हो चुके थे। इस संगीन सूरत हाल ने उनको मुस्तरब और परेशान कर दिया था। चुनांचे उन्होंने अपनी रियासत व ज़कावत और फिक्र व तदब्बुर से कौम को मज़ल्लत और जुल्मत व जहालत की इंतहाई तारीख घाटियों से। आज ये प्रोग्राम हो रहा है जी, प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइएगा, कौन हो रहा है? जी अच्छे। आज का ये जो प्रोग्राम है, पहली बार हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू काजी नज़रुल यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू में जो है पहली बार एक कौमी सेमिनार का इनेकाद किया, एक रोज़ा कौमी सेमिनार, नेशनल सेमिनार, वन डे नेशनल सेमिनार, जिसका मौजू है दौर हाजिर में सर सैयद की फ़िक्री मानवियत। दरअसल ये जो महीना है अक्टूबर का, ये सर सैयद का महीना है और 17 अक्टूबर को सर सैयद डे हम लोग मनाते हैं, जश्न यौम सर सैयद के तौर पर मनाते हैं। इस बार यूनिवर्सिटी बंद थी तो हम लोग वो उस दिन नहीं मना पाए, तो हमारा ख्याल है कि जब पूजा वेकेशन के बाद अभी यूनिवर्सिटी खुली है तो हमें ख्याल है कि क्यों ना हम लोग जो है कौमी सेमिनार का इनेकाद करें।
तो हम लोगों ने जो है एक कौमी सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें प्रोफेसर तौकीर आलम साहब, एक्स प्रो वाइस चांसलर मजहरुल हक यूनिवर्सिटी बिहार से तशरीफ़ लाए हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर उमर गजाली साहब, हुगली मोहसिन कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू तशरीफ़ लाए हुए हैं। इसके अलावा आसनसोल एतराफ़ के जो दीगर जो कॉलेजेस हैं जहाँ उर्दू की दर्स व तदरीस का इंतज़ाम है, वहाँ से डॉक्टर जमशेद अहमद साहब, डॉक्टर शमशीर आलम साहब और जो है इसके अलावा और भी जो कलकत्ता से मिल्लिया अमीन कॉलेज से डॉक्टर नगमा निगार मोहतरमा तशरीफ़ लाई हुई हैं। इसके अलावा हमारे जो फैकल्टी के जो हमारे असातिज़ा हैं, ये भी अपना पेपर पेश करेंगे। ये जो आज का प्रोग्राम है, आज की तकरीब है, सेमिनार है, वो दरअसल 3 सेशन पर मुश्तमिल है। इफ्तिताही इजलास में जो है हमारे जो रजिस्ट्रार साहब हैं यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर चंदन कुनार, वो तशरीफ़ रखते हैं। उन्होंने इनागुरल स्पीच के ज़रिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की। इसके अलावा जो कलीदी खुतबा डॉक्टर उमर गजाली साहब जो है दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो आज के पहले सेशन का जो सदारती खुतबा है, वो प्रोफेसर तौकीर आलम साहब, एक्स प्रो वाइस चांसलर मजहरुल हक यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जोड़ने की कोशिश की है आसनसोल के तरफ के तमाम वो जो असातिज़ा हैं, और उसमें ख़ासतौर से जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, नए लिखने वाले हैं, उनको भी जोड़ने की कोशिश की है। क्योंकि और इसके अलावा ऐसे लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की जिनको और किसी सेमिनार में शायद नहीं बुलाया जाता है, वहाँ हम लोगों ने बुलाने की कोशिश की है, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। और ये एक सिलसिला है जिसकी इब्तदा जो है आज हुई है, और ये सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा भी हम लोग शोबे उर्दू के ज़रिए अदबी खिदमात, इस तरह की खिदमात अंजाम देते रहेंगे, कौमी सेमिनार का एहतमाम करते रहेंगे। आप देख रहे हैं पीछे हमारा ये वॉल मैगज़ीन है काजी नज़रुल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू का नज़रुलनामा। इसी की बुनियाद पर हम लोग एक मैगज़ीन भी रिलीज़ करने जा रहे हैं बहुत जल्द, जिसका नाम होगा नज़रुलनामा। ये शोबे उर्दू से जारी होगा, जिसमें शोबे उर्दू की जो सरगर्मियाँ हैं वो पेश उसमें शामिल रहेंगी। इसके अलावा जो तकरीबात जो इनकाद होगा, उसके मकाले वगैरह शामिल रहेंगे। इसके साथ साथ ही हम लोग एक अदबी तंजीम जहान अदब के नाम से भी हम लोगों ने यहाँ जो है उसकी शुरुआत की है, उसकी बुनियाद रखी है। उसमें एक माहाना नशिस्त हम लोग करेंगे, अदबी नशिस्त, जिसमें जो है अदबी मौजू पर जो है गुफ्तगू होगी। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। ये जो सेमिनार हो रहा है, नेशनल सेमिनार, इसमें न कोई फंडिंग है, मैंने किसी भी तरह का कोई ताउन नहीं है सरकारी या माली कहीं से भी। ये शोबे उर्दू की जानिब से जो असातिज़ा हैं और तलबा हैं, उनकी कोशिशों से, उनके ताउन से आज का सेमिनार जो है वो मुनक़िद हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी कुलीग डॉक्टर सूफिया महमूद। ये बहुत ही फ़ाल, बहुत ही मेहनती हैं, इसकी वजह से। और हमारे इनके पीछे भी एक पूरी टीम है हमारी यूनिवर्सिटी की, डिपार्टमेंट की, जो हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं और इस काम को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि आसनसोल की जो सरजमीन है वो बिल्कुल ज़रख़ेज़ है अदबी ताल्लुक़ से। बस ज़रा सा इस मिट्टी को नम करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि इस खिदमत के ज़रिए आसनसोल के अदबी फ़ज़ा को कायम रखा जाए, आसनसोल के अदबी माहौल को बनाया जाए, और इस तरह से गाहे बगाहे हम इस शोबे के ज़रिए, जहाँ दर्स व तदरीस का बेहतर इंतज़ाम है, जहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पोस्ट टेंशन नहीं है, बहुत जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द असातिज़ा यहाँ पर फुल टाइम टीचर तकर्री हो। और इसके ज़रिए हम लोग, आज चूँकि वीसी हमारे यहाँ नहीं है, अभी 1 महीने के अंदर नए वीसी हमारे आने वाले हैं यूनिवर्सिटी में। जैसे ही वो आएंगे, हम लोग अपना मुतालबा तेज़ करेंगे, हम लोग और जो है कि यूनिवर्सिटी में जल्द से जल्द असातिज़ा की बहाली हो यहाँ पर। इसके साथ साथ आइंदा हम लोग इस तरह की खिदमत अंजाम देते रहेंगे, ताकि एक अदबी माहौल यहाँ पर कायम हो और बेहतर तालीमी निज़ाम यहाँ पर कायम हो सके। मैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक आज़म, कोऑर्डिनेटर शोबा उर्दू काजी नज़रुल यूनिवर्सिटी, और ये हमारे कुलीग डॉक्टर सूफिया महमूद, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू काजी नज़रुल यूनिवर्सिटी। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के ज़रिए और हमारे पोर्टल के ज़रिए शिल्पांचल की
हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसानसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।